on a lighter note. So that means that you are having some kind of problem, and when you go to find a solution to the problem, what you use normally? Google, right? So if you able to find a solution of the problem, your problem is solved, right? But if you are not able to find a solution of your problem on Google, then find a solution or make a solution. That is your patent. Am I clear? Just on a lighter note. So that means that you are having some kind of problem, and when you go to find a solution to the problem, what you use normally? Google, right? So if you able to find a solution of the problem, your problem is solved, right? But if you are not able to find a solution of your problem on Google, then find a solution or make a solution. That is your patent. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Right? So it is not neither in discovery, neither in invention. It is basically innovative solution. So in innovative solutions, see, discovery, yes, definitely we can say we discover something. So if we talk about, say, we discover some evolution of light or something like this, so naturally we can say, yes, we discover something, right? But there's a difference between discover, invention and innovation. So that's totally up to you. So whenever you're not able to find a solution on Google, just go and make your solution, and then get it patented, because that's a unique idea. That whatever you are saying, that unique idea. And every time your patent should not be unique, because students come to me and they ask me, sir, हम सोच रहे थे कि we are going to make an aeroplane जो आज तक बना नहीं, right? Then we will get it patented. No, that is not at all required. Right? So, Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. Sir, so I just started. So, good afternoon, ladies and gentlemen. So, taking our afternoon further and begin with our very special expert talk organized by IEEE Chandigarh University Student Branch and IEEE Photonic Society Chandigarh University. So, I, on behalf of everyone present here, so heartily welcome our expert and dignity of seminar today, the guest of honor, Dr. Kamal Kant Sharma. So Dr. Kamal Kant Sharma is a distinguished professor and associate dean at Chandigarh University. He has 14 years of teaching experience and 6 months of industrial experience in the field of installation, commissioning and project supervision. He completed his PhD in the field of power system stability from PEC University of Technology, Chandigarh. He is awarded with ISTE Best Teacher Award in 2015, Best Teacher Award from his present university in the year of 2016, Best Researcher Award from International Institute of Organized Research in the year of 2017. He is also awarded with the Best Teacher Award from ITSR in 2017. He is also awarded as Preeminent Researcher Award by Sustainability Cosmos, UN partner in implementing SDG across globe in 2019. He conducted international symposium on real-world simulator in higher education in Philippines. He is on international panel of Malaysia Technical Scientists Association, editor of international journals and technical programs committee of various international and national conferences, IEEE and Springer. He is on advisory panel of Springer and was given responsibility of session chair in Springer international conferences. He is the life member of ISTE and also delivered many guest lectures and expert talks in India and abroad. He was a member of external judge in 5th Conference and Engineering Undergraduate Research, Catalyst, Malaysia. He filed 10 patents, in which 7 patents has filed within a year. He is the author of 12 books, 12 chapters, editor of many international journals and conferences, published 105 papers in international journals. He successfully completed 2 projects and completed many consultancy projects. I would like to welcome all the faculties, students and sports staff who are the integral part of the university for so long years. I would also like to our request to everyone kindly cooperate with us all throughout the program for make it a grand success. Last but not least, I would like to request our chief guest Dr. Kamal Kant Sharma to initiate our program and enlighten our audience with his valuable words. Thanks again, sir, for being a part of Expert Talk today. Please, sir, the stage is yours now. Thanks for the kind words. Very kind words.
Thank you, Well, sir. yeah. So I entered this before I start. I just want to convey to the student. I entered in this engineering field around 20 years back, and just took admission, and then I started my journey, and I went to industry also. Then I come back to academia. Um, so the thing is, one thing is very much clear. One thing should be very much clear to all the students that when you say that the students of Chandigarh University are different, or the India is different, or the abroad are different, no. Students are everywhere same. As you rightly said, that I was involved in Malaysia, I was involved in Philippines and other countries and the advisory panel. So the students' expectations are same, student aspirations are same. Only the thing is whether they are able to conquer, whether they are able to do in which direction, whether the direction is given rightly, or whether they are able to understand like from where they need to start and from where they reach to end, or what not end actually, but yes, they achieve something. So today's topic was like journey of innovation. So we just need to understand two three things very rightly in this direction. First of all, the student must be aware about what is discovery, what is innovation, what is invention, and what is research. Sometimes the students are being confused and they ask that just the things are research and the patent is same, or I'm not able to do the research, that's why I'm not able to form a patent. How many of you think that research and patent are same? Sir, I think these two things are different. Like the research has a different pattern and the patent are different. Okay. How many similarities there between research and patent? Sir, like 50% to 60% is the similarity between research and the patent. Okay. But They sir, are you both- can convert your research into a patent, like if your research is up to that level. Okay. So if you already published your research, can it be a patent? No, sir. Okay. So that means you have to restrict your research to a certain area, certain point, right? Yes, sir. So how you will decide that I should restrict my research to this point? आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे रिसर्च यहाँ तक रोकना है और अब पेटेंट कराना है? Maybe I will contact my mentor or someone which is. Okay, fine. What else? देखिए, I have a patents in automobile sector, as he was giving my introduction, and he told that I am from the power system, right? And my patents, you would be surprised, I am having a patent in the automobile industry. Okay, one patent is going to be granted, that is in IoT. It is going to be granted in 1 week or so. Okay, so you need to understand 2-3 things, that it is an interdisciplinary field first of all, and keep your mind straight that whenever you're not able to find a solution, just make whether it is, see, when you're talking about research, you are talking about writing a research paper, but that is not at all about patent. It is not at all about research. अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. Okay, how many of you are thinking, आपने zip देखी है? Did you see the zip? Yes, sir. जो पैड पे यूज होती Yes, है, sir. Yes, sir. आप उसमें लॉक लगाते हैं, राइट? आप उसमें लॉक लगाने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ IoT, कुछ CSC का लगा सकते हैं, कुछ AI का लगा सकते हैं, राइट? सो मुझे बताइए, उसमें रिसर्च है कि उसमें पेटेंट है? वो पेटेंट की कैटेगरी में आएगा कि रिसर्च की कैटेगरी में आएगा? पेटेंट. हाउ? Sir, basically it's something like hardware में कुछ changes कर रहे हैं and whatever we are thinking. हाँ, मैं अब उसी पे आता हूँ. मैं तभी आपके सिर्फ वो पूछना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या सोचना चाह रहे हैं, फिर मैं PPT शेयर करता हूँ. सी, जब आप बात करते हैं हार्डवेयर की, हार्डवेयर always not pertain to patent. You can go with the software implementation also. The only problem is whether that software, because in India there's a lot of problems with the software, what I can say, implementation, software impregnation of that particular tech, or what you can say, device. अगर आप zip के अंदर कुछ हार्डवेयर लगाते हैं, that come under the category of design patent, right? उस डिजाइन पेटेंट के साथ आप कुछ ICT लगाना चाहते हैं, आप कुछ IT इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आप कुछ
उसमें CSC, AI, IoT, AR, VR कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं, you can go ahead. Okay, so you need to understand first of all two things that हर बार डिजाइन में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए डिजाइन के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं. अब हर बच्चा अगर ये सोचे कि जी मैं तो कुछ डिजाइन का नया करना चाह रहा हूँ, राइट, तो वहां पे कुछ हार्डवेयर लिमिटेशंस भी हैं. तो पेटेंट इज नॉट ओनली अबाउट हार्डवेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर इट, राइट. इट इज यस डेफिनेटली हम हार्डवेयर को प्रेफर जरूर करते हैं, क्योंकि अगर आप हार्डवेयर रोल में या पेटेंट को हार्डवेयर उसमें बनाना चाहेंगे, अपने हार्डवेयर कुछ स्पेसिफिकेशन चेंज करके कुछ चेंज बनाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपका डिजाइन पेटेंट होगा, जल्दी ग्रांट होगा, उसमें आपका FER भी कम होगा. आई विल कम टू दिस कि क्या FER क्या होता है. तो आपको ग्रांट होना भी इजी हो जाएगा, आपको जो आपका पब्लिश होगा वो इजी हो जाएगा. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू, बट जरूरी नहीं है कि आपको हार्डवेयर में ही जाना. इस चीज से आपको रुकना नहीं है कि जी हम पेटेंट नहीं कर सकते हो, कि जी हम तो हार्डवेयर में नहीं जा सकते. ओके, सो दैट इज वन थिंग. ओके, अब बात आती है कि रिसर्च को कहाँ तक रोकना है. देखिए रिसर्च आपकी जो आपको कोई पेटेंट करने के लिए उसका लिटरेचर व्यू, अगर कोई भी चीज आपको इन्वेंट करने के लिए, इनोवेट करने के लिए, ओके हाउ, मैं थोड़ा सा और डीप जाता हूँ. डिड यू हियर अबाउट इनोवेटिव फार्मिंग? द टर्म इनोवेटिव फार्मिंग. Somewhat sir, like please go ahead. Yeah, somewhat like innovative farming means applying different types of technology in order to farm the lands. Like we are having good amount of seed growings and all, good time of yield shields and also that type of thing. Then what is precise farming? I'm not aware of precise. Okay, see, I'm not from a agriculture background, but I have two patents in agriculture. See, there is a difference. अगर आप कोई साउथ से हो, right, there are lot of things are going in IIT Madras, and so many persons are involved, and they're from CSC. They are filing a patent in the agriculture sector. They are talking about precise farming. हमारे इंडिया में उसकी रिक्वायरमेंट है. हम जब उसकी बात करते हैं इनोवेटिव फार्मिंग की, राइट, तो इनोवेटिव फार्मिंग आप देखिए हिमाचल में हो रही है. सो व्हाट इज दिस इनोवेटिव फार्मिंग, व्हाट इज दिस प्रिसाइज फार्मिंग? देखिए अगर आपने कभी MHRD की वेबसाइट चेक कीजिए, वहां पे उन्होंने लिस्ट की है 705 प्रॉब्लम्स ओपन की हैं, राइट. सो 705 प्रॉब्लम्स अंदर चेक करेंगे. दिस इज अ वाटर भी उसके अंदर इंक्लूड है, सॉइल भी उसके अंदर इंक्लूड है, पावर सेक्टर भी उसमें इंक्लूड है, हेल्थ सेक्टर भी उसमें इंक्लूड है. आई एम टॉकिंग अबाउट 2 months बैक. हो सकता है वो बढ़ गई हो या कम हो गई हो. So they are asking for a proposal. They are not talking about you are from CSE, you are from IT, you are from electrical, ECE, mechanical, aerospace. No, there is no limitation as such. सिर्फ दिमाग चलना चाहिए. That's it. Startup होना चाहिए. Right? So you should be, जैसे मैं वैसे ही बात करता हूँ कि हमें basically job seeker नहीं बनना, job provider बनना है. वो होगा तभी जब आप innovative चलोगे. राइट, और इनोवेशन कहीं ना कहीं आपको पेटेंट की तरफ लेके जा रही है और कुछ नहीं है. पेटेंट देखिए, पेटेंट अगर आपका होगा नहीं होगा दैट इज सेपरेट इशू, बट आपने उसको जब पेटेंट के लिए व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द पेटेंट, यू हैव टू हैव अ लिटरेचर रिव्यू. यू नीड टू हैव अ लिटरेचर रिव्यू. ओके, और वो लिटरेचर रिव्यू कहाँ से आएगा? रिसर्च से. अगर आपको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है तो आप इनोवेट क्या करोगे? So you have to have a literature review and then you have to have a proper methodology. उस methodology से कुछ चीज आप निकाल कर innovate करोगे. That is patent. So जो क्वेश्चन आया था अभी, जो क्वेश्चन बात हो रही थी, रिसर्च हम कहाँ रोकेंगे, रिसर्च कहाँ तक जाएगी, वो डिपेंड करेगा आपका टॉपिक क्या है, आप किस फील्ड में इनोवेशन लाना चाहते हैं, आप किस चीज में चेंज करना चाहते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कहाँ तक चीज हो चुकी है. अगर मैं बात करूँ AR/VR का, I think the CSE people are also there. So what is AR/VR? How many of you are aware about AR/VR? मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ. Augmented reality and virtual reality. What are they? What is AR? What is VR? How they are going to help us? What is Industry 4.0? What is Industry 5.0? So I am just telling you what when I am talking about IoT, when I am talking about IIoT. मैं जिपर के बाद इसका रन कर रहा था कि हमने एक पेटेंट किया अभी जिपर में और इट इज गोइंग टू बी ग्रांटेड. 2-3 चल रहे हैं पर हाँ जिपर को थोड़ा टाइम लगेगा. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि मार्केट में चल क्या रहा है. इंडस्ट्री 5.0 की अगर बात हो रही है, इंडस्ट्री 4.0, आपकी पेटेंट तब तक ग्रांट नहीं होगा
या तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप सोसाइटी की नीड्स या इंडस्ट्री की नीड्स को पैसिफाई नहीं करेंगे या केटर नहीं करेंगे। अगर आप उसकी नीड्स को केटर कर रहे हैं तो डेफिनेटली योर पेटेंट इज बेनिफिशियल, वो ग्रांट होकर भी आपको फायदा देगा, राइट? अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज। तो रिसर्च आपको करनी ही है, पेटेंट उस रिसर्च के बिना नहीं होगा। बट अगर आप पेटेंट के लिए ही सिर्फ जाना चाहते हैं विदाउट रिसर्च, तो देन यू हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पाई फॉर्म भी भरना है, आपको उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस भी करनी है, और उसको आपको ये भी देखना है भी हो क्या रहा था और हम क्या कर सकते हैं, राइट? Okay, if I talk about okay, can you tell me, anybody tell me about discovery ही invention, discovery ही और invention में कोई फर्क है? Is there any difference with discovery and invention? Yeah, so there is a big difference in discovery and invention. Example देके समझाएंगे? So yes, definitely. Sir, discovery is what any particular person finds. Let's say Christopher Columbus discover America. So America was present in the real world, but he has only discovered the path to reach America. And invention is what when Thomas Alva Edison invented the light bulb. So light bulb was not present before he invented that. So that was invention, and whatever the Christopher Columbus do, that is discovery. Okay. I give you example. I ask you, in fact, not giving example, I ask you, if I say light, okay, light, only light, and we say the bulb, out of bulb and light, which is discovery and which is invention? Well, light is discovery and light is discovery and bulb is invention. So can we say that every time invention is a subset of discovery? Yes, sir, we can say so. And what about innovation then? So innovation is innovation. Doing modification in the present invention. Present invention. Like bulb is innovated to LED. Okay, that is innovation. That can be patented. If we go with the CFL or we go with the LED, LED is a patent thing or not? Sir, yes, it is Design a patent. LED is patented? Yes, sir. Sure? Yes, Sure, sir. sir. सोचिए, एक बार दोबारा सोच लीजिए, अगर मैं AI की बात, सर आई थिंक वो डायोड से वो डिस्कवर हुआ है, लाइटनिंग एमिट डायोड। ओके, नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि LED बताइए मुझे, आप वो इनोवेशन है कि इन्वेंशन है या कुछ भी नहीं है? इनोवेशन है, तो मतलब पेटेंट हुआ उसका। यस सर। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा उसके बीच में आता हूँ। I am also trying side by side to share the PPT because I am on a phone right now and phone is having so many limitations and I am not able to share the PPT anyhow. Okay, so if I talk about invention only or innovation, there is very thin line difference between both of them. If you are able to do invention, then definitely it can be innovative or not innovative, that is separate concern. But innovative is basically you are doing a changes in existing work to make it more deliverable. नॉर्मली स्टूडेंट्स जब पेटेंट करते हैं या पेटेंट का फॉर्म भरते हैं, पाई फॉर्म का फॉर्म भरते हैं और उसको रिप्लाई आता है कि ये पेटेंट नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले आपका इस तरह का काम हो चुका है। तो क्या उनका आइडिया पेटेंट नहीं हो सकता? हो सकता है, बट दे हैव टू सी कहाँ काम हुआ है और कितना काम करने की जरूरत है। बट क्या अगर आप 3-4 चीजों को असेंबल करके इनोवेशन करेंगे तो वो पेटेंट नहीं है। Have an example now. आपने सेंसर यूज किए, आपने कोई टेक्नोलॉजी पहले से है उसको यूज किया, AR/VR को कहीं अटैच इंटीग्रेट करने की कोशिश करी और एक नई चीज बना दी, दैट इज नॉट पेटेंट। आपने एक सूटकेस के ऊपर सिक्योरिटी लगाई, आपने एक फेस कैमरा लगा, एक आपने कैमरा लगा दिया, एक आपने फिंगरप्रिंट लगा दिए, आपने कुछ 2-3 तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करी, दैट इज नॉट पेटेंट। So patent is very बहुत small gap, बहुत small bracket है, right? आपको ये देखना होगा कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है और कितना आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ओके,
और जो आप चेंजेस कर रहे हैं क्या वो कहीं आपको लेके जा रहा है? बिकॉज मैं आपको सिंपल शेयर करता हूँ. व्हेन वी टॉक अबाउट पावर सेक्टर, व्हेन वी टॉक अबाउट पावर सिस्टम, राइट, आई वर्कड इन टाटा and at that point of time around 15-16 years back there was a conception that okay, before I go that how many of you are from Himachal? कोई है? Why I'm specifically asking, I will tell you later, but मुझे बताएंगे जरा? No sir. Okay. Do post in the comment section, and if you want to ask anything, if you want to interact, you can also Otherwise- on your mic. No issues. Otherwise, raise your hands. Okay, Punjab, no problem. देखिए, why I'm asking Himachal? I'm not from Himachal basically, but I am asking Himachal because see, वहाँ पे आपकी hills हैं, right? आपने एक लाइन को ट्रेवल करना है from one end to another end. वहाँ पे आपकी सैग भी आती है, सैग यू अंडरस्टैंड, राइट? वहाँ आपकी सैग भी आती है, थोड़ी सी आपकी ट्रांसमिशन लाइन को आपको ड्रॉप भी करना पड़ता है, वहाँ पे आपकी वोल्टेज लेवल भी कम होता है और वहाँ से आपका थेफ्ट भी बढ़ता है. सो अगर इन चीजों में आप कुछ चेंज करते हो, दैट इज इनोवेशन, दैट कैन बी पेटेंटेड. बट अगर आप 3-4 चीजें जोड़ेंगे देन इट इज प्रॉब्लम. ओके, सीइंग दैट पाइप फॉर्म, व्हाट यू विल डू इज आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका जो पेटेंट है या जो आपका आइडिया है वो ओके भी है कि नहीं है. Yes, sir. So there are certain points in that pipe form like comparative analysis, how it is going to implement, how it can be, you know, कैसे हो सकता है, क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स है, सब कुछ उसके अंदर कवर होगा. आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी कि आपका ये आइडिया चल भी सकता है कि नहीं चल सकता. Yes, sir. बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अप्रिशिएट कि जब भी आपके पास आइडिया आए, गो हेड. ठीक है, उस आइडिया को आप प्लीज 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 कोशिश कीजिए. देखिए, अगर पेटेंट नहीं भी होगा कोई इशू नहीं है, आपको क्लैरिटी बहुत हो जाएगी, Relative, yes, sir. राइट? सर ये पाइप फॉर्म का प्रोसेस कैसे है? पाइप फॉर्म का प्रोसेस है आपके पास. आप COIMS, आप CU के स्टूडेंट है, COIMS पे जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए. अगर अच्छा. आपको नहीं है मिलता तो मुझे बताइए, मैं आपको शेयर कर दूंगा पाइप फॉर्म, राइट? उस पाइप फॉर्म को भरिए. उसके बाद यू जस्ट सेंड इट टू वन ईमेल आईडी, इट इज amnolpe.com, Yes, sir. cu@amnolpe.com. वहां पे सेंड कीजिए, right? They will study it and they will revert you back that whether it is patentable or not. Okay, sir. ठीक है, फिर आपका पेटेंट गुजरेगा 3 प्रोसेस से ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फाइलिंग, देन सेकंड इट इज गोइंग टू पब्लिश एंड देन थर्ड इट इज गोइंग टू ग्रांट. सर इसका कोई प्रोसेसिंग टाइम होता है पेटेंट अगर रजिस्टर एक बार में फाइल कर दिया तो उसके बाद? जब आप फाइल करेंगे अब्दुल, उसके बाद 18 मंथ्स लगेंगे उसको पब्लिश होने में, गूगल पे आने के लिए. ओके सर. ठीक है, इन द मीन टाइम अगर आपका वो फाइल हो गया देन यस, इट्स योर प्रॉपर्टी, यू कैन यूज इट, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके सर. बट आप उस पे काम करना शुरू कीजिए. 18 मंथ्स उसको लगेंगे पब्लिश होने में. उसके बाद आपकी आएगी FER, दैट इज फर्स्ट. ठीक है, उसके लिए फिर आप अटॉर्नी करेंगे एंड देन यू हैव टू डिफेंड योर दैट इनोवेशन एंड देन द पेटेंट विल बी ग्रांटेड टू यू फॉर 20 years. ओके सर, थैंक यू सर. प्लीज. सर पेटेंट की वैलिडिटी 20 इयर्स तक है या फिर उसके बाद में भी? आप एक्सटेंड करा सकते हैं उसके बाद भी उसकी जुबेर, बट पॉइंट ये रहेगा कि जब भी आप उसको उसकी एक्सटेंड, देखिए 2-3 चीजें हैं. एक ये कि अगर आप पेटेंट करवा रहे हैं उसके बाद आप उसको PCT के थ्रू करवा रहे हैं या विदाउट PCT करवा रहे हैं. नाउ व्हाट इज दिस PCT एंड विदाउट PCT? अगर आप विदाउट PCT करवाएंगे तो वो सिर्फ आपका इंडिया में रहेगा, अदर कंट्रीज में वो आपका पेटेंटेड नहीं होगा. अगर कोई आपका वहां से डाउनलोड करता है गूगल के ऊपर से और वो उस चीज को बनाना लगता है या उस पर कोई काम करता है, यू डोंट हैव एनी राइट टू से कि नहीं ये मेरा पेटेंट है एंड यू कांट डू इट. नो, यू कांट से. बट अगर आप PCT करवाएंगे देन यस, आप उन कंट्रीज में भी आपका जो आपकी जो इनोवेशन होगी, इन्वेंशन होगी या आप डिस्कवरी करेंगे वो आपका पेटेंटेड रहेगा. अब आप कहते हैं कि 20 इयर्स के बाद, यस, आपने सुना होगा, मैं थोड़ा सा आपको इसमें लॉजिक देता हूँ. आपके पास एक टूथपेस्ट है, ठीक है, कोलगेट का टूथपेस्ट आता है. जस्ट अ वेरी व्हाट आई कैन से वेरी ब्रॉड एग्जांपल. आपके पास एक टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हैं कोलगेट का या किसी भी कंपनी का, कोई भी, तो वो आपको पूरी चीज एक बार में नहीं डालते. यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? उन्होंने पहले सॉल्ट डाला, उसके बाद उन्होंने चारकोल डाला, फिर कुछ और एलिमेंट डाल देंगे, तो डेफिनेटली वो एक्सटेंड हो रहा है आपकी चीज.
क्लियर? तो 20 साल तक आपका पेटेंट चला, उसके बाद आपने उसको कुछ और उसमें चेंज किया, वो आपका फिर आगे 20 इयर्स के लिए आपको ग्रांट हो गया या whatever you are looking for, so आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। बट एक पेटेंट आप फाइल करेंगे वो 20 इयर्स की वैलिडिटी देगा आपको। सर पे कितना करना पड़ता है पेटेंट के लिए? अगर पेटेंट के लिए वो कुछ पे नहीं करना। एज अ स्टूडेंट यू हैव टू गो थ्रू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, राइट? यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टिल ग्रांट। ओके, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल पेटेंट कराएंगे देन यस यू हैव टू पे, देन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, देन इट वेरी फ्रॉम अटॉर्नी टू अटॉर्नी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर चैट बॉक्स में से क्वेश्चन है, सर हाउ इज क्रिएटिव इनोवेशन सो इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स? व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? पहले क्वेश्चन इस पे आता है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? टू चेंज समथिंग फिर बात नहीं और करेंगे, टू क्रिएट समथिंग न्यू फॉर द सोसाइटी। new for the society. Okay. New for the society, that is only entrepreneur. Why which society can benefit from that? Okay. तो अगर मैं बात करूं डोमिनोज की, it is patented. I think no sir. Okay. अब मैं आता हूं थोड़े से और चीजों पे। देखिए, जब आप कोई इनोवेटिव सोल्यूशन करते हैं तो वहां पे आपका ट्रेडमार्क भी आता है, वहां आपका कॉपीराइट भी आता है। ठीक है जी। और ये दोनों चीजें अलग है पेटेंट से। मैं थोड़ा सा और इस पे एंटरप्रेन्योर पे टच करूंगा। आप सब कोका कोला पीते हैं, कोक पीते हैं ना? यस सर। जो उनका सोल्यूशन है, क्या वो पेटेंटेड है? नो सर, उनका ट्रेडमार्क है, वो कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है उनका, ट्रेडमार्क है। So why they didn't go for patent? I think it's download and Why they didn't try सर for? पेटेंट शायद उन चीजों पे हो सकता है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। क्या हो सकता है? सर पेटेंट शायद उन्हीं चीजों पे हो सकता है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है सर। नो या डिजाइन इंक्लूड है जिसमें, या टेक्नोलॉजी। देखिए, मैं इंडिया की बात करता हूँ। देखिए, अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो आपका सोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है? आपके सोल्यूशन की बात हो रही है, आपकी पेटेंट की बात होता है। इंडिया की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर से नहीं कराते हम पेटेंट, ठीक है? सॉफ्टवेयर की देयर इज प्रॉब्लम, तो हार्डवेयर के साथ हम पेटेंट पे जाते हैं। बट अब वो उस सोल्यूशन को भी पेटेंट करा सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन तो पूछा गया था कि 20 साल तक पेटेंट होता है। बिल्कुल, 20 साल के बाद आप उस पेटेंट को, वो ओपन हो गया मार्केट में, कोई भी उसको यूज कर सकता है, राइट? तो जब आप बिजनेस में जा रहे हैं, बिजनेस सीक्रेट है आपका वो सोल्यूशन, तो आप उसको टीएम करवाएंगे, ट्रेडमार्क में जाएंगे। ओके सर। ओके, तो आप उसको पेटेंट में नहीं जाएंगे। तो दैट यू नीड टू सी, आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, दैट मींस आप किसी मेथोडोलॉजी के साथ जा रहे हैं, आप किसी टर्मिनोलॉजी के साथ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको ओपन ही करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर। सो यू विल गो विद द ट्रेडमार्क। सर ट्रेडमार्क लाइफ टाइम रहता है क्या? ट्रेडमार्क की वैलिडिटी रहती है, आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। ओके, बट हाँ, लाइफ टाइम के लिए भी ले सकते हैं। कॉपीराइट भी ऐसे ही, आपका कॉपीराइट भी लिटिल बिट डिफरेंट, राइट? जैसे अब मैंने 2 पीपीटी सेंड की थी प्रतीक को, आई थिंक एक उनसे ओपन हो गई है। yes sir, तो अगर मैं बात, या one is opening and second is not opening, okay. So when we talk about this trademark and copyright, right, there's a difference between trademark and copyright. अब copyright की जब आप बात करते हैं, आपने कोई सॉन्ग लिखा, आप हनी सिंह की बात कर रहे हो, राइट? या किसी सिंगर ने कोई सॉन्ग लिखा, या बंगला में किसी ने कोई सॉन्ग लिखा, राइट? तो उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं होगा, आप यूज कीजिए, जो मर्जी करिए उसके साथ। बट अगर उसके ऊपर कॉपीराइट होगा, देन जैसे आप कॉपीराइट फॉर्म, आप जितने भी लोग एमई हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको पता है कॉपीराइट फॉर्म भरवाया जाता है। उसका मतलब क्या होता है कॉपीराइट फॉर्म भरवाने का? कि जी आप अपने राइट्स दे रहे हो कि आप पब्लिश कर सकते हो पेपर पर, राइट्स आपके पास रहेंगे, यू आर द मेन होता है। सर कुकिंग रेसिपीज पे क्या अप्लाई होगा, पेटेंट या फिर कॉपीराइट? आई वुड से, देखिए रेसिपी की अगर हम बात करें अब्दुल, तो रेसिपी बेसिकली यस यू कैन गो, अगर आपका कुछ ऐसी डिश है जो कुछ अलग है। yes, अलग करने का मतलब ऐसा नहीं कुछ ऐसा डाल दो जो खाया ना जा सके, राइट?
बट यस रेसिपी अच्छी है, उसकी रिकमेंड एप्रिसिएशन मिल रही है आपको, उसकी रिकमेंडेशन भी मिल रही है, और आपने कुछ ऐसी चीज जो पहले कोई प्लांट था नहीं, आपने उस प्लांट से रेसिपी बनाई, या आपने कुछ कोई आपका ऐसा था जिससे रेसिपी थी ही नहीं और आपने नई रेसिपी की और उससे कोई कैंसर जो है वो खत्म हो रहा है, या आपने कोई ऐसा सोल्यूशन बनाया, तो आप पेटेंट में जाइए। अदरवाइज आपको कॉपीराइट कीजिए, उसको कॉपीराइट कीजिए जी डिश मैंने बनाई है, मेरी तरह की डिश है। जैसे आप देखते हैं कई डिशेस के साथ कई शेफ्स का नाम लिखा होता है, तो उन्होंने कॉपीराइट कराया उसको। ओके जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ डिस्कवरी, तो डिस्कवरी इज एन एक्ट ऑफ डिटेक्टिंग समथिंग, राइट? सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हैं, क्लियर? न्यू भी हो सकती है, प्रीवियस भी हो सकती है, आप उसको अनरिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड मीनिंगफुल में भी ला सकते हैं, बट दैट इज नॉट, ये पेटेंट हो सकता है नहीं भी हो सकता। हर बार डिस्कवरी की बात अगर आप करेंगे, जैसे आप लाइट की बात कर रहे हैं, मैंने पहले बात की थी कि जब आप असेंबल और डिसअसेंबल की बात कर रहे हैं, तो असेंबल करके चीजों को अगर आप कोई चीज बनाओगे तो दैट इज नॉट कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पेटेंट। ओके Okay. Thank you, sir. Pratik, can I use this? Okay. So if I talk about invention is a unique, you know very well, let's discuss in lot a bit about that, a novel device, method or composition of process. So Abdul, your point was coming over there, it can be a process. Okay, so it's a process basically, but when we talk about process, it's an overall engineering. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जी कि मैनेजमेंट में इन्वेंशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग है। ओके जरूरी नहीं है आपने प्रोडक्ट में आना है, राइट? प्रोडक्ट की बात तब आती है जब आप डिजाइन पेटेंट के साथ चलते हैं, जब आप चलते हैं कि आपने कोई मशीन बनानी है, आपने लेथ मशीन में कुछ चेंजेस कर दिए हैं जी, तब ओके देन वी विल टॉक अबाउट दिस। अदरवाइज टोटली हमने वी हैव टू थिंक कि ये प्रोडक्ट नहीं भी बनता है, कोई इशू नहीं है। एक ये भी लिमिटेशन रोड ब्लॉक है। हाँ जी प्रतीक सर, एक क्वेश्चन है, जैसे कि कोई भी चीज पहले से तब एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर अगर हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं या तो थोड़े बहुत इनोवेशन आइडिया हम लगाते हैं अपना, तो उसको एज ए पेटेंट पब्लिश करा सकते हैं सर, उसको एज ए पेटेंट मान सकते हैं सर उसको हम? प्रतीक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगेन मेरा क्वेश्चन वहीं पे है प्रतीक कि आप असेंबल करके चीजें कर रहे हैं, जैसे आपकी कोई एग्जिस्टिंग चीज एग्जिस्ट कर रही है। जी सर। जैसे एग्जांपल जिपर का लेता हूँ, जिपर आपका एग्जिस्ट कर रहा है। जी सर जी। अब उस जिपर में आपने कुछ सिस्टम लगा रहे हो कि वो लॉक अनलॉक हो, बट नंबर ऑफ जिप्स काउंट करके हो। जी सर। ठीक है, तो वो पेटेंटेड है। साथ में आप कोई स्टोरिंग डिवाइस लगाते हो, वो पेटेंटेड है, राइट? अगर आप कहते हो कि जी हमें तो इसके साथ हमने इसका स्ट्रक्चर ही चेंज करना है और उस स्ट्रक्चर से जो है वो पहले वाली एग्जिस्टिंग इन्वेंशन है वो उससे बेटर हो रही है, तो वो पेटेंट है। जी सर। ओके यस। Can we go to the next slide? Yeah. So what is innovation? Now we come across innovation as we're talking about journey of innovation. So practical implementation of ideas, that is very, very important. When we talk about practical implementation of ideas, we are talking about the system. Can we say that these ideas can be implemented or not? ये बहुत एक critical point है पेटेंट के अंदर, जो आप पूछते हो मुझसे innovation के अंदर, क्या वो चल सकते हैं, क्या उससे कोई फायदा होगा? देखिए 3 तरह के पेटेंट मैंने पहले भी बात की थी, वन इज डिजाइन पेटेंट, वन इज एप्लीकेशन पेटेंट, वन इज प्रोडक्ट पेटेंट। जी सर। प्रोडक्ट और डिजाइन में प्लीज थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन, प्रोडक्ट और डिजाइन की, हम बात करते हैं सिंपल एक पेटेंट की जिसका स्टैटिक पेटेंट है, डायनामिक पेटेंट के अंदर नहीं आता, तो हमें ये टारगेट करके चलना। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय टॉक विद दैट ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस। सो व्हेन वी आर ह्यूमंस वी हैव अ प्रॉब्लम टू अ सर्टेन थिंग, सो उसका सॉल्यूशन आपको ह्यूमन से ही मिलेगा। अगर वो गूगल पे मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको बना लीजिए, और जब आप उसका सोल्यूशन बना लेंगे तो वो आपका पेटेंट की कैटेगरी में आएगा। जैसे आपका इनोवेटिव फार्मिंग की बात होती है, उसमें ग्रोज होते हैं, लाइक दिस वीडियो हैज दिस सीन, राइट? सो यू कैन सी वेयर वी आर गोइंग टुवर्ड्स, राइट, एंड वेयर इट इज एंडिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, प्लीज।
Now, what you understood from this? Pratik, we can go to the next slide. So, what you understood from this? Yes, students. इस PPT, इस वीडियो से आप समझे क्या है? Why I keep this video? Sir, I think from this video we seen that मतलब हमें मतलब एक जब सर्दी का एहसास होता है तो मतलब हमने एक कॉटन का क्लॉथ बनाया, उसका मतलब हमने बियर किया। देन मतलब जो भी इनोवेटिव आइडिया था मतलब हमें कॉटन से मिल गया सर। जी सर। Okay. Yes. Any other one? बेसिकली वीडियो में इनोवेशन दिखाया है, कैसे हम अपने दिमाग को यूज करके अलग अलग आइडिया निकाल सकते हैं एक प्रॉब्लम का। Okay. Yes. And anything else? Any discovery and innovation is everywhere. Okay. Now you can see the difference, right? So what this video says that every problem has many solutions. What important is आप उस solution की implementation कैसे लेके आ रहे हैं? That is basically your innovation. So if I talk about, you can see the difference now. You can in discovery, you can coming on something. This, as I already told you, discovery of fire and discovery of light. But when we talk about invention, it is a new product. But when we talk about innovation, it is basically the successful products. Now, please understand this. When we say discovery, it is a light. Fine, light is there. We can generate a bulb. We can make a bulb. We can make certain other things. That is the creation of new product, working prototypes. But when we talk about innovation, we are talking about successful things. We are adding certain spice to it, so that we are going to successful products. Okay, like Amazon and Google and self-driving taxis. So this is nothing but auto taxis are there. Taxi से पहले आपका wheel generate हुआ. That is discovery. आपने उसे taxi बनाई. But now we are talking about self-driving taxis. Yes sir. So, Is it clear? I think. yes sir, self-driving like innovation ideas like Tesla. Yes. Automation. Yes. Now अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा सर, ये पेटेंट हो सकता है सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी? Yes sir. सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी आपका पेटेंट पूरा टैक्सी नहीं होगा, बिकॉज टैक्सी पहले से है। आप जो उसके अंदर मॉड्यूल डाल रहे हो ऑटोमेटेड, दैट कैन बी पेटेंटेड। जी सर। Okay, so as we can see that, look at the history, innovate doesn't come from just giving the people incentives. It comes from the environment. It comes from the environment that we can connect. Okay, now what is this environment is all about? It about the peer perception. और तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेटेंट करने के लिए सिर्फ आप खुद मत बैठिए, आप अपने फ्रेंड्स का डिस्कस कीजिए, पर ऐसे फ्रेंड्स के साथ जिसके साथ आप आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं और खुद पेटेंट ना करवा दे। राइट? सो जब आप डिस्कस कर रहे हैं आइडिया, तो इस तरीके से आइडिया डिस्कस कीजिए कि हाँ जी ये एक किस तरह ये प्रोडक्ट में डेवलप हो सकता है कि नहीं हो सकता। Yes sir. Okay, yes, any other question till this point? Sir, I think so. I think one question is there, I must see. Okay. So that is all theoretical, importance of innovation and productivity increase and continuous evaluation, maximize ROI. Yes. Sir, one question is there in chat box. How do you improve creativity and innovation skills? Like, what do we do for innovation skills? देखिए, इसका एक ही solution है। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको लर्निंग लाइसेंस मिल गया गाड़ी का, ठीक है जी? राइट? आपने गाड़ी चलानी शुरू करी, पहली बार आपकी गाड़ी कहीं स्टक हो गई, आपका गियर ही चेंज नहीं हुआ, राइट? यू पैनिक, पीछे से लोग आपको हॉर्न कर रहे हैं, यू पैनिक, यू जस्ट कम आउट ऑफ योर कार एंड सेड मेरे से नहीं चलती, आई वोंट। ओके, दैट इज वन थिंग। सेकंड, आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सेकंड बार आपने गाड़ी चलाई, आपने बहुत स्पीड से चलाई एंड स्टक, वो सीधी जाके राउंड अबाउट पे लगी एंड इट गॉट एन एक्सीडेंट, राइट? थर्ड बार आपने गाड़ी चलाई और ऑटोमेटिक आपने चलाई, आप जैसे राउंड अबाउट से क्रॉस करने लगे, सामने कोई आ गया, आपने उसमें हिट कर दिया, राइट? फोर्थ बार आप हिली एरिया पे गए, वहां से आपसे गियर ही नहीं बदला गया एंड यू सेड मेरे से नहीं चलेगी, राइट? फिफ्थ टाइम एंड सिक्स्थ टाइम्स, and after some time you are perfect, you can go at 80, 100, 150, 200, 20, 30, you are okay.
So that is about how you innovate it, how you increase your creative skills. आपको ये इसके लिए think करना पड़ेगा. आपसे पेटेंट कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता. Keep it in mind. जब तक आप सोल्यूशन ढूंढे, जब तक आप नहीं सोचेंगे, तब तक आपकी वो क्रिएटिव, अब आप पूछ रहे हैं कि कैसे इंप्रूव होगी, वो इंप्रूव होगी बेसिकली जब आप चीज सोचना शुरू करेंगे. यू स्टार्ट थिंकिंग टू अ स्मॉल प्रॉब्लम. अब मैंने वही स्टार्ट किया था टॉक में कि ऐसा नहीं है कि आपने एरोप्लेन बनाना है. ये माइंडसेट अपने दिमाग से निकालिए कि वी हैव टू मेक एन एरोप्लेन. नो, दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. यू कैन मेक अ सिंपल थिंग, बट दैट नीड टू बी डिफरेंट. Okay, yes. So as we already did, there's a definition. So protection granted by the national government. Okay, so others from making and selling for 20 years, I told you, that is validated for a period of 20 years. So it is a patented. But yes, the important thing is आपको अपने skills अब ये चाहिए क्यों? ये आप तभी improve होंगी. अपने peers perception में जाइए, अपने peer में बात कीजिए, वहां से डिस्कशन कीजिए, हर चीज के बारे में सोल्यूशन सोचना शुरू कीजिए. ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्लेसमेंट में भी. Okay, it will help you in the placements also. It will help you to build your mind. It will help you to become an entrepreneur. It will help you to get your creative thinking. So why patent is necessary? You know very well exclusive rights and opportunity to license or sell. Right? Any question to this, because that is totally subjective. So any question to this? Exclusive right, if you're not very much clear about exclusive rights and all. Five form and filing process. I'll discuss with you the documentation of new invention. It is filing, then validate the invention, then filing it for the patent, then go with the publication, and then examination, then grant and periodically renewal. If you want to get renewed again and again, यहाँ पे एक चीज है, आपको रिन्यू करेंगे आप, बट आपको उसमें हर बार कोई नई चीज डालनी पड़ेगी. 20 years के बाद you have to add certain spice to it, then it can be renewed. Otherwise वैसे renew नहीं होगा कि आप उसको फीस देंगे and it get renewed again and again. You have to add certain spice to it. To invent, you need a good imagination. That is what you are asking about. आपको पेटेंट करना है तो आप कैसे improve करेंगे? You need a good imagination, a pile of junk. Okay. So yes, any question till patent? Then otherwise I will start with the trademark and copyright. Yes, guys. If you have any question or any doubt, you can post your question in chat box and also turn on your mic also. ओके, जूम आपका ट्रेडमार्क है कि जिस पे हम आज कर रहे हैं ये सेशन? जूम आपका ट्रेडमार्क है या आपका पेटेंट है? ट्रेडमार्क. ओके, तो इन्होंने पेटेंट क्यों नहीं करवाया? सर जो ये प्रोडक्ट है वो हमारा पेटेंट हो सकता है, और जो जूम का जो नाम है वो हमारा कॉपीराइट होगा. कॉपीराइट है कि ट्रेडमार्क है? ट्रेडमार्क, सॉरी. अब यहाँ पे हाँ, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क देखिए, ये एक प्रोग्राम है. इसी तरह का जो है वो गूगल क्लासरूम भी चलता है, राइट? सो अदर थिंग्स आर आल्सो गोइंग. तो जूम आप करा रहे हैं, दैट इज अ ट्रेडमार्क, राइट? सो अगर आप कंपनियों के नाम बना रहे हैं, दैट इज अ ट्रेडमार्क. देन कॉपीराइट, यू कैन गो विद द कंटेंट, यू कैन गो विद द वेब. अच्छा, जो आपके ब्लॉग होते हैं कॉपीराइट के अंदर आते हैं, ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं ब्लॉग्स? सर कॉपीराइट. Why it is not trademark? Blogs is a copyright. अच्छा, जो आप गाइडलाइंस होती हैं आपकी, वो आपकी कॉपीराइट में आएंगी, ट्रेडमार्क में आएंगी? कॉपीराइट्स में. ओके, सो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस व्हाट इज द ट्रेडमार्क, कॉपीराइट. ओके, अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं किसी कंपनी के नाम से, इट विल कम अंडर द ट्रेडमार्क और कॉपीराइट? सर ट्रेडमार्क. व्हाई नॉट कॉपीराइट? तो कॉपीराइट हमारे कंटेंट पे होगा. बस ट्रेडमार्क हम किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड पर ले सकते हैं. क्या हम एक चीज पे कॉपीराइट और ट्रेडमार्क दोनों ले सकते हैं? सर ले सकते हैं. दोनों? यस सर. कैसे? सर जो पर्टिकुलर नेम होगा, जो टेक्स्ट में होगा, वो हमारा कॉपीराइट में आएगा, और जो हमारा लोगो है वो हमारा ट्रेडमार्क में आएगा. अच्छा, सीयू का लोगो है वो ट्रेडमार्क है कि कॉपीराइट है? सर लोगो ट्रेडमार्क है. सर वो ट्रेडमार्क है. तो कॉपीराइट नहीं है? नो सर टेक्स्ट है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा कॉपीराइट आएगा, कोई और यूज कर सकता है कॉपीराइट. जो आप लॉ बनाते हैं, दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर कॉपीराइट. ओके, जब आप जीडीपीआर की बात करते हैं, जब आप
किसी डॉक्यूमेंट की पॉलिसी की बात करते हैं वहाँ पर कॉपीराइट है। ट्रेडमार्क आपका तब आएगा जब आप किसी स्टार्टअप की बात करेंगे, किसी कंपनी की बात करेंगे, मतलब एक आप कह लीजिए कि कॉपीराइट आपका एक सबसेट है ट्रेडमार्क का, बट हाँ वो दोनों एक इंडिविजुअल एंटिटीज भी हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कोका कोला की कंपनी की बात की थी, कोका कोला इज TTM, इज नॉट कॉपीराइट, इट्स नॉट पेटेंट, क्योंकि वो एक बिजनेस सीक्रेट है, राइट? तो दैट्स व्हाई वी गो विद द TM। जैसे हमने जूम की बात करी, इट इज TM, इट इज नॉट कॉपीराइट, Completely understand. right? So if you want to, we can elaborate through a video. You can see this is about copyright and trademark. Okay, so if you want to reach the island where the magic happens, go have through the innovation. So now the session is open. Even though already I was having an interactive session because the PPT was not working properly fine. That's why I sent 2 PPTs to Prateek and one was working okay. Yeah, please, any questions, please? सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट हमारे जो रिसर्च होते हैं सर उसके लिए की टूल्स क्या होते हैं, हो सकते हैं हमारे लिए, कि हमारा जो वे एंड पाथ हो आसान हो जाए रिसर्च करने के लिए? Key? Sorry, please repeat again. सर की टूल्स, सर व्हाट आर द की टूल्स ऑफ रिसर्च देखिए सो इट बिकम इजियर? हाँ, वो डिपेंड करता है बच्चा, वो डिपेंड करता है अब्दुल उसके ऊपर कि आप किस एरिया में रिसर्च करना चाह रहे हैं। यस सर। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप ऑटोमोबाइल में रिसर्च करना चाह रहे हैं, राइट? तो अगर आप ऑटोमोबाइल में रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी की बात आ रही है, वहाँ आपकी डिजाइन की बात आ रही है, वहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन की बात आ रही है, राइट? तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आपके आउटकम्स डिफाइन करने पड़ेंगे किसी रिसर्च के। जब आप किसी चीज की डिफाइन कर रहे हैं, आउटकम्स डिफाइन कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रिसर्च करते हैं, इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब हम पता कर रहे हैं कि एरिया का, कि हमें किस एरिया में रिसर्च करनी है। देन वी गो विद द सेकंड वन इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मींस आप पता कर रहे हो कि उस एरिया के बारे में कितना हो चुका है। जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं सोलर व्हीकल की, या आप बात करते हैं प्लग इन व्हीकल की, या आप बात करते हैं ऑटोमेटेड टैक्सीज की, या आप बात करते हैं AR VR की, तो कितना काम उसमें हो चुका है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो द लिटरेचर। उसके बाद आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आएंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नथिंग बट आपने उस लिटरेचर रिव्यू में से कुछ क्रक्स निकाल लिया, राइट? क्रक्स निकालने का मतलब आप हर चीज की प्रॉब्लम नहीं, हर चीज को प्रॉब्लम नहीं बना सकते। यू हैव टू आइडेंटिफाई। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आपके ऑब्जेक्टिव फाइनल होंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अब इसकी ये ऑब्जेक्टिव है, मैं ये कंप्लीट करूंगा। इसी में से आपका पेटेंट निकलेगा, क्योंकि जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव फाइनल किया आपका पेटेंट का जो पाथ है वो इजी हो गया, ठीक है? उसके बाद आप टाइमलाइन डिफाइन करेंगे। टाइमलाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब्दुल। रिसर्च कितने आवर्स में आपने कौन सी चीज पूरी करनी है, अदरवाइज होगा क्या कि जब आप पेटेंट के बारे में करेंगे, रिसर्च के बारे में करेंगे, तो एक पॉइंट के बाद आपका वो गिव अप होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार का, आप जा रहे हो, आपने एक बार गाड़ी मारी, दूसरी बार, तीसरी बार, देन यू सेड गिव अप, मेरे से नहीं होगा, राइट? सो दैट इज अ पॉइंट। जैसे आप पीछे आप IEEE लिख रहे हैं, राइट? तो ये जो IEEE आप लिख रहे हैं, दैट इज अगेन कॉपीराइट टू ट्रेडमार्क। तो वो उसके लिए भी आपको IEEE आपने नाम तो लिख दिया, अभी कैसे बना था दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपने इसके लिए रिसर्च पहले, आप कॉपीराइट के लिए भी आप ऐसे तो नहीं करेंगे भी कुछ भी लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आप अब्दुल लिखना चाहते हैं, राइट? तो आपने ए को कैसे लिखना है, अगेन यू हैव टू स्टडी, अगेन यू हैव टू डू द लिटरेचर। इससे पहले कि तुमने कैसा लिखा है और उसका क्या आउटकम है, राइट? देन यू विल गो विद दैट। ये 5 एंड्स हैं, 5 वर्टिकल्स हैं रिसर्च के, जिस पे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल एक्सेल। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। Sir, one question is there. Where to check the status of our patent after getting the application मैं number? वो बताता हूँ। आप जाइए IPI इंडिया पे, ठीक है, या पेटेंट इंडिया पे चले जाइए, वहाँ पे आप सर्च करेंगे। वहाँ पे आपको सर्च के बाद वहाँ एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा, वो एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे डालिए, उसका स्टेटस आ जाएगा कि वेदर इट इज पब्लिश और वेदर इट इज फाइल्ड और वेदर इट इज द FER एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर, एग्जामिनेशन ग्रांट की प्रोसेस में चला गया या नहीं चला गया। अदरवाइज आप फाइलिंग करने के 18 मंथ्स के बाद आपका ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। Sir, one more question. Sir, what is the best way to getting the similar thing about our research? I don't get your question. Are you want to ask कि जो हम कर रहे हैं उसकी कितनी Sir, सिमिलरिटी उसके है? related सर similar content कहाँ से हमको अच्छा content कहाँ से मिलेगा? Similar contents. देखिए 2-3 चीजें हैं। जब आप सिमिलर कंटेंट की बात करेंगे अब तो प्लेगरिज्म के अंदर आएगा। Yes sir.
ठीक है, किसी ने अगर कुछ पब्लिश कर दिया और आप वही चीज सेम लिखना चाह रहे हैं तो दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लैगियरिज्म। सर उससे आइडिया ले सकते हैं। Committee plagiarism is not a what I can say good practice। Yes, sir. ठीक है, इस पे काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी हैं। हाँ, अगर आप उसके रिगार्डिंग सिमिलर डेटा लगाना चाहते हैं तो देन यू हैव टू डाउनलोड द पेपर, रिसर्च पेपर डाउनलोड कीजिए। देखिए, ब्लॉग्स पे डिपेंड मत कीजिएगा, ब्लॉग्स आर नॉट एट ऑल ऑथेंटिक, Yes, sir. राइट? कुछ भी लिख सकते हैं ब्लॉग्स के अंदर। वंस इट इज पब्लिश विद अ गुड पब्लिशर, यू हैव टू सर्च इट आउट, यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई उसके रिगार्डिंग कितना आपका SCI का आर्टिकल है या कोई पब्लिश नॉट गो फॉर SCI ओनली, गो विद अ सर्टेन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। तो आप उसके लिए देखिए बहुत साइट्स है, IEEE जैसे आप कह रहे हैं, IEEE यूज कीजिए, कर लीजिएगा, IET यूज कीजिए, एल्सवेयर, स्प्रिंगर, राइट, हेंडावी, देयर various publishers which are showing authentic content, so use that. Thank you, sir. Guys, if you have any question and any doubt, you can post your question. You can also raise your hand if you want to speak anything. It's a great opportunity for you all, as we are having great sir with us, Kamal sir. He'll be answering your all questions regarding research, patent, innovation. So do come ahead and ask your queries. Yes, I hope the students are clear with what is the difference between research, patent and innovation. I hope. yes. Yes, other than this, the feedback form is also there, so you can submit your valuable feedback. So every participant, please turn on your camera so that we can take the screenshot. So just this is a token of appreciation, sir. Thank you, Pradeep, thank you. Thanks a lot, sir, for joining today's session. It was really a great one, and I believe that all of our participants have learned a lot in order to gain the insights from you. So thanks a lot to you, sir, for giving your valuable time and coming to our session and informing about innovation and all. So thanks a lot to you. Thank you very much. Thank you. Yes, thank you, Thanks sir. to all Thank you the so much, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir, for a wonderful session. Thank you so much, sir. Thank you, Abdul. Thank you all. Thank you, sir. Thanks to all the participants also for joining us. We are also having Birendraji sir with us. So, sir, over to you. Do you want to speak anything? Yeah, thank you so much, Dr. Kamal sir. It's a great session. And let me congratulate you for having a research paper on SCI having an impact factor of, I think, 6.8. 6.8. Yes, it's a great achievement for us. You're an asset of electrical engineering department.